लोग इस प्ले पे पिछले 5-6 महीने से काम कर रहे हैं और प्ले को ओपन भी कर चुके हैं, लेकिन नॉट इन बॉम्बे, नॉट इन मुंबई। पहले हमने शो किए हैं कानपुर में और दिल्ली में, और लेकिन आज पहला शो मुंबई में है। नेचुरली वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू, बिकॉज मुंबई ऑडियंस के सामने पहली बार हम प्ले करेंगे। सी रॉन्ग नंबर ज़िंदगी में लगते रहते हैं लोगों के, लेकिन अगर कॉमिकली उसको एक्सप्लोर किया जाए तो रॉन्ग नंबर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यू नो, कि आदमी की गलती से रॉन्ग नंबर अगर लग जाए तो वही पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर होती है इस प्ले में। आ जाओ। सबसे ख़ास चीज़ ये है कि हम 5-6 बड़े पुराने दोस्त, बड़े पुराने कोलीग्स सभी एक ही मंच पर हैं, एक ही प्ले में है। एंड इट्स अ स्प्लिट सेकंड टाइमिंग कॉमेडी, इस तरह का ह्यूमर है इसमें। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, एंड इट्स अ लाफ अ मिनट राइट। सो ख़ास चीज़ यही है कि इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड आई होप पीपल एंजॉय इन मुंबई ऑल्सो। ये एक धमाल प्ले है, इतना ही कहना चाहूँगी ऑडियंस को। दिमाग घर पे रख के आइए, मस्ती करिए, लाफ आउट लाउड एंड जस्ट एंजॉय, बिकॉज टेंशन तो वैसे भी बहुत है लाइफ में, छोड़ के आइए घर पे। और जो शादीशुदा है उनके लिए खास मैसेज है। We have always seen all of you all mostly in comedy things, especially you, Jaane Bhi Do Yaro, still remember, and I guess we are looking forward this beautiful comedy. So what do you think, Mumbai wale, how they will give you after Lucknow and Delhi? What do you think? कैसा यहाँ पर? I am sure it's going to be a fantastic response here too, because we've got a fabulous response in Kanpur and Delhi, and especially Rangshar the audience. जब हम यहाँ आते हैं ना, कुछ एनर्जी अलग होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर होती है और इतना अच्छा लगता है। एंड बॉम्बे तो अपनी जगह है यार, अपने यहाँ तो हम लोग शेर हैं। So you can always explore new things in Amsterdam. No, we have got a winner in our hand. It's a sure shot. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। It's a very good product. We have got a winner in our hand, so we are sure that it's going to hit. Yeah, I think here the script is the hero, which is very important in comedy. Yeah. So, you know, and then we just have to add to it, and we've got Diggajs on stage. Absolutely. One better than the other. Everyone in the character is so much fun that I think even backstage when somebody else's scene is going on, we're still laughing, we're still enjoying, we're still with the person on stage. Even That is the best part, that we enjoy ourselves still. Yeah. That is the best part of it. And that's our producer, Rahul Butcher. He's around. In the black t-shirt who's shy at the back. That's Kishwar in yellow. And he is the producer, Felicity Producer and the hero. Yeah. We call him hero. What do you think? How are you looking forward to this play here? This is a premiere in Mumbai. So what are your expectations? Solid expectations. I mean, I've come here with a lot of love and passion for the city, and all the other co-actors. Everybody is there from Bombay only, and I really am feeling home away from home. Yeah. Home away from home. Yeah, but I must mention over here, हम लोग बाकी सारे मुंबई के हैं, and we used to be all here for rehearsal. But he used to fly down from Delhi every Thursday. every Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Because he obviously has his own job and his own company and his own whatever empire to take care of. But he used to come here only Job and weekend. empire, both. Yeah, I was trying to put it mildly, but then I said, okay, maybe I'm underselling him. So I think soon we are going to see one house in Mumbai as well. I think so. He's got many houses. He's got many houses. I already have 7. See? We already have. You see? I already have 7. You are richer. Yeah, absolutely. कुछ नहीं, enjoy करो, super hit है. Thank you so much. All the best, guys. Yeah, one good. यहाँ पे सामने एकदम सेंटर। Wrong number ऐसा पोस्ट करो। हाँ, wrong number। कैसे करती है? वो सामने देखिए. Okay, wrong number। हो गया? Going to the right number. Thank you. Enjoy. One more. One more. Thank you. One more. Two more. Okay, sir. Sir, video.
Thank you. Yes. Yes. Watching you since ages. सबकी एक्टिंग भाई, हमारे सारे दोस्त हमारे कलीग्स हैं, सबके साथ काम कर चुका हूँ। वैसे सारे कमाल के एक्टर्स हैं यहाँ पे। वैसे मतलब आपको ज़रूर आना पड़ेगा देखने के लिए, बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड सबको एक साथ इकट्ठा लाना, दैट्स गोना बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ऑडियंसेस है जो थिएटर को सपोर्ट नहीं करते। ओके, हम 400 रुपये 500 रुपये की टिकट ले लेंगे फिल्म देखने के लिए। आजकल तो मल्टीप्लेक्स में तो वो हमारा स्पेशल रिक्लाइनर सीट भी आ जाएगा, चाहे वो कितना भी बोरिंग फिल्म क्यों ना हो, लेकिन वो 1000 रुपये की सीट खरीदेंगे। लेकिन यहाँ थिएटर को सपोर्ट करने के लिए जो आपको रियल लाइफ परफॉर्मेंस मिल रही है, ऑडियंस डोंट वांट टू पे, उन लोगों को पैसे नहीं दे रहे, मतलब दे वांट टू कम फॉर फ्री, दे वांट टू सी। वही उन लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी है जो उन लोगों को बदलनी चाहिए, बिकॉज इफ़ दे चेंज देयर मेंटालिटी, इफ़ दे लूज इन देयर पर्स स्ट्रिंग्स, मुझे लगता है कि यू विल गेट मोर
थिएटर्स, मोर शोज़, मोर प्लेज हैपनिंग, शायद ज़्यादा थिएटर हमारे बॉम्बे में या कहीं पर भी, वील हैव मोर ऑडिटोरियम्स टू परफॉर्म. ऑडिटोरियम्स भी बहुत ही लिमिटेड है, तो I feel, I request all the audience who are watching this to please come out in numbers, do support theatre, because this is the place where you get live performances जहाँ पे actually मज़ा कुछ अलग ही होता है. So you must come. रॉन्ग नंबर की बात हुई, कभी अभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि कुछ आपको रॉन्ग नंबर आया, कुछ oh yes, ये हुआ करता था जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे. वी हैड दोज फोन्स जहाँ पे वैसे घुमाओ, वो जो उन दिनों में वो भी होता था, वो क्या ब्लैंक कॉल्स भी होते थे. तो उन दिनों में रॉन्ग नंबर, ब्लैंक कॉल्स, बड़ा मज़ा आता था. हम भी कई बार ब्लैंक कॉल्स दे चुके और रिसीव भी कर चुके. और दूसरे तरफ वी न्यू देयर वाज अ गर्ल ब्रीदिंग ओवर देयर कि कौन है, क्या है. कॉलेज में जाओ तो सोचते थे इसमें से कोई ना कोई लड़की मुझे ज़रूर पसंद करती है, इसलिए उसने मुझे ब्लैंक कॉल दिया है. और हम भी वैसे ही करते थे. इफ़ यू लाइक समबडी वी यूज्ड टू गिव अ ब्लैंक कॉल. तो कॉलर आईडी तो था नहीं, तो वी वर ऑलवेज सेफ. आजकल कहाँ पकड़े जाते हो, यू कांट गिव अ ब्लैंक कॉल टू एनीबॉडी. हाँ महेश ऑन द अदर साइड, धर तेरी की नंबर सबके पास है. रॉन्ग नंबर तो मैं अब नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने शो देखा नहीं है. अब मैं अंदर जाऊंगा, शो देखूंगा, ताली मारूंगा, सीटी बजाऊंगा, फिर बाहर आके बताऊंगा कि प्ले कैसा है. ओके चलिए. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस प्ले में. जलास है, किशोर है, तराज है और इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कॉमेडी के माहिर है. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ रियली फन प्ले. Sorry, I didn't get a question. Well, I think theatre is obviously a very different genre. किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छा लर्निंग रहता है. Like मैं जब I started acting तो मैंने कैलकाटा में थोड़े बहुत थिएटर किए थे and it's always very difficult. So ऐसा बोला जाता है कि कोई अगर थिएटर में अच्छा है so you can more or less excel in all the other mediums. So it's difficult because live audience होती है but that's the fun of it. So I am looking forward to a great play. वही मैंने बोला ना कि सारे इतने दिग्गज है कॉमेडी के फील्ड में. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रियली फन प्ले. बट आई एम रूटिंग फॉर द गर्ल गैंग. ऑल द थ्री आर माय डियर फ्रेंड्स. सो यस, गर्ल
संकल्पा। रॉन्ग नंबर की बात हुई, ऐसा इंसिडेंट रॉन्ग नंबर आया हो आप में जो I can't share, obviously. Thank you. आई फील लाइक मोदी साहब। हाँ भाई, मैं तो कह रहा था कि ये प्ले निपट जाए उसके बाद मैं कुछ कहूँ। अब आप लोग चाहते हैं कि बाइट दूँ, प्ले देखने से पहले मैं बाइट कैसे दूँ? हालांकि मैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी कंटेम्पररीज़ हैं, तो मुझे उम्मीद तो बहुत है इनसे, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी उम्मीदें भर आएगी, और सिर्फ मेरी ही नहीं, ऑडियंस की उम्मीदें भी भर आएगी। बहुत अच्छे कलाकार हैं सब, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पीछे, और थिएटर का भी है, फिल्मों का भी है, तो उस किस्म का एक अट्रैक्शन भी है ऑडियंस के लिए। तो मेरे ख्याल से दे शुड बी वेरी सक्सेसफुल। लंबा समय दिया इंडस्ट्री को, आपने देखा भी होगा अदर फीचर फिल्म एंड थिएटर्स के कंपेयर में कम तवज्जो दी जाती है। नहीं, थिएटर का एक अपना मज़ा है, एक अपना सुरूर है। जैसे बियर का एक अलग नशा होता है और वाइन का एक अलग नशा होता है, वही चक्कर है। हर एक चीज़ का एक अपना नशा है। जिनको थिएटर का इतना शौक़ होता है वो शायद फिल्मों में मज़े इतनी ही लेते होंगे इतना, मगर ऑफ कोर्स फिल्म इज़ मोर पेइंग डेफिनेटली। पर अब मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है कि आजकल थिएटर इज़ ऑल्सो पेइंग वेल। शायद यही वजह हो सकती है मेरे कॉलीग्स ये सब कर रहे हैं आजकल। सॉरी, नहीं देखिए, अब देखिए जिस किस्म का क्राउड आज यहाँ पर है, तो इसका मतलब देयर इज़ सम स्टार पावर विच इज़ अट्रैक्टिंग द थिएटर ऑडियंस ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आज कोई कलाकार जो थिएटर से आया हुआ है, फिल्मों में भी अपना नाम कमाया है, वो अगर थिएटर फिर से करता है तो हर कोई आएगा देखने। ये बात है। कोई इंसिडेंट ऐसा रॉन्ग नंबर से टाइटल हो, तो वैसे कोई रॉन्ग नंबर आया जो आपके रिलेट हो कुछ? नहीं, ऐसा मुझे कोई रॉन्ग नंबर नहीं आता, क्योंकि मैं आजकल नंबर देखता हूँ ना, अगर मेरी पहचान का नंबर तो मैं उठाता ही नहीं हूँ। पहले ज़माने में सर जब फोन नहीं होते थे, नंबर्स नहीं दिखते थे, तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। कुछ कहना चाहेंगे एक्साइटमेंट के बारे में? हाँ भाई, ज़रूर देखिए प्ले, मैं भी मेहनत करके आया हूँ इतनी दूर से प्ले देखने। आप भी प्लीज़ आइए, देखिए, कुछ नोट कमाएंगे हमारे आर्टिस्ट, तो और अच्छे प्लेस लेके आपके सामने पेश करेंगे। गुड लक एंड थैंक यू। वेल ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज इस प्ले में सब इतने टैलेंटेड है और इतने अच्छे कलाकार है, सो आई कांट वेट टू वॉच इट। एक्चुअली शी इज़ राइट, इतने बढ़िया कलाकार जब एक जगह मिलते हैं और इतनी अमेजिंग स्क्रिप्ट होती है, तो इट्स गोइंग टू बी रॉक एंड रोल टाइम। हम तो, मुझे लग रहा है कि हम इतना हंसने वाले हैं कि हंसते हंसते हमारे आंसू निकल रॉन्ग नंबर कभी ऐसा आपकी पर्सनल लाइफ में रॉन्ग नंबर ऐसे आए जो आपके आज करीबी हो या कुछ ऐसी कोई फेवरेट हो आपकी? जो हमारी आज करीबी हो, करीबी का तो पता नहीं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर लगता है और किसी और को आपकी आवाज़ पसंद आ जाती है और बार बार रॉन्ग नंबर डायल करके बोलता है आई एम सो सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। देखिए, हैविंग डन अदर मीडियम्स ऑल्सो, मैं कहती हूँ कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस इज इमीडिएट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। तो अगर चप्पलें मारनी है तो वो चप्पलें भी मार सकते हैं, फूल बरसाना है तो फूल भी बरसा सकते हैं। एक एक्टर का मेटल अगर चेक करना है तो उसे स्टेज पे खड़ा करो और फिर पता लगेगा वो कितने पानी में है। आई थिंक थिएटर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मीडियम्स बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लाइव, देयर आर नो कट्स एट ऑल। So hats off to all the theatre artists. I love theatre, I love watching plays, and that is the reason I'm here to support Taraz for sure. देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म जो होता है वो सिर्फ अगर आपकी खुशी के लिए हो तो वो तो सही है, लेकिन उसमें से पैसे भी तो बनने चाहिए ना। तो आई फील plays going commercial is a fantastic thing. More and more people should be encouraged, and I think the younger generation needs to be told that it's not just the web of films or television. Theatre is a living medium and you need to watch it. Thank you. Thank you. Thank you.
सर सेंटर Actually, I've been invited by Tanaz, and I'm really excited. She's a good friend, and she wanted me to come for this play. And I have actually, it's been ages since I saw any play. तो मुझे बहुत excitement है कि ये बहुत आज एक hilarious kind of play है, और इसमें कुछ confusions हैं, कुछ wrong numbers हैं जो आज हम देखने वाले हैं, and I'm really excited to see. जी. Of course मैं बहुत फॉलो करती रही हूँ थिएटर. दिल्ली में जब मैं रहती थी तब भी जो पुराने आर्टिस्ट हैं जिनको आज भी हम देखते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, मुझे बहुत पसंद था. मैं खुद प्लेस करती थी. मैंने भी एक टाइम पे दूरदर्शन के लिए प्ले किए हैं. अपने स्कूल में बहुत इंग्लिश हिंदी प्लेस किए हैं. और मतलब थिएटर का कहना, उसके बारे में यही कहना है कि जो भी आर्टिस्ट थिएटर से आए हैं दे आर अमेजिंग, और आज भी वो काम करते हैं. उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है. और बट मंझे हुए कलाकार निकले हैं थिएटर से. तो थिएटर तो मतलब एक बेसिक है, जैसे हम लोगों के लिए क्लासिकल सीखना और उसका रियाज़ करना, उसी तरह मुझे लगता है फिल्म स्टार्स के लिए थिएटर से निकलना और आना वो एक अलग जगह बनाते हैं. कमर्शियल वे में आई वुडंट नो मच अबाउट ऑल दिस, बट आजकल देख लो आप, बहुत सारे कमर्शियल आर्टिस्ट हैं जो थिएटर से ही आए हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. उनको देख के अच्छा लगता है और पता चलता है कि ये मंझे हुए, ये सीखे हुए कलाकार हैं. उनकी एक अलग ही अपनी पहचान होती है. बिल्कुल. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम ऑन द स्टेज. और आज जो लाइव देखने का परफॉर्मेंस, जैसे हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं और लोगों को एक्साइटमेंट होती है, वैसे आज रॉन्ग नंबर देखने का भी मुझे बहुत आई एम रियली एक्साइटेड टू सी. एंड आज बहुत दिन के बाद मैं बैठ के थिएटर देखूंगी, मुझे इसके लिए अच्छा लगा. रॉन्ग नंबर को लेके ऐसा कुछ याद नहीं आता, लेकिन हाँ बहुत रॉन्ग नंबर्स आते थे. और लेकिन उसको याद करना तो मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ द इंसिडेंट्स. थैंक यू. गॉड ब्लेस.